اتنا ہی خوبصورت نقشہ پھر میرے مولا نے اپنے کردار سے پیش کیا ہے. اس نے کہا اچھا یا علی سرکار اگر آپ نہیں پسند کرتے تو ہم پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ استغاثہ ضرور کریں گے کہ علی نے ہماری ہدایت کرنا پسند نہیں کی. جب کر علی نے ہماری ہدایت کرنا پسند نہیں کی, مالک کی عزتوں کی قسم جب کہا نا کہ علی نے ہماری ہدایت, علی کہتے ہیں ہم تمہاری ہدایت کریں گے, جاؤ ایک مرتبہ مسجد کو سجا دو اور منبر کو آواز دے دو کہ تجھ پہ وہ آ رہا ہے جس کا تو انتظار کر رہا ہے. اور جیسے علی مولا نے کہا کہ کل ہم منبر پہ پہلا خطبہ دیں گے, تو عرب کی عربیوں میں سے کچھ عربی ایسے تھے جو صرف یہی سوچ رہے تھے کہ جب پہلا خلیفہ آیا تھا وہ وہاں بیٹھا تھا جہاں محمد کے پاؤں ہوتے تھے, دوسرا خلیفہ وہاں بیٹھا تھا جہاں پہلے خلیفہ کے پاؤں ہوتے تھے, اور تیسرا خلیفہ وہاں بیٹھا تھا جہاں دوسرے خلیفہ کے پاؤں ہوتے تھے. منبر پہ 4 زیرے تھے, 4 کے 4 ختم ہو گئے. اب علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ کچھ لوگ اسی سوچ میں تھے کہ علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے, اور وہ منظر دیکھنے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے کہ آج علی کہاں بیٹھیں گے. کہ میرا مولا گھر سے چلا تو منظر عجیب تھا, کائنات کے مشکل کشا ایک مرتبہ پھر اب آئے مصطفیٰ. کب آئے مصطفیٰ؟ دستار مصطفیٰ یا تبرکات انبیاء میں ساجد تاج کے جب مسجد کے قریب آیا, مجمع کو چیرنا شروع کیا. علی منبر کے قریب ہوئے, سوچنے والے سوچ رہے تھے کہ علی کہاں بیٹھیں گے یا کائنات کے مشکل کشا نے ان کی سوچوں کو اپنے پاؤں سے شکست دیتے ہوئے پہلے سینے پہ پکاؤ اور قدم رکھا, دوسرے پہ قدم رکھا, تیسرے پہ قدم رکھا. مرتضیٰ مصطفیٰ کی جگہ بیٹھے. جب مرتضیٰ مصطفیٰ کی جگہ بیٹھے, مجمع میں سرگوشیاں شروع ہوئی. نیتوں کا علم رکھنے والا علی مسکرا کے کہتا ہے پریشان کیوں ہوتے ہو, یہ تو لکڑی ہے, اگر میں پاؤں ٹکانے پہ آ جاؤں تو مہر نبوت پہ ٹک جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہو, یہ تو لکڑی ہے, اور تم یہ دیکھ کر پریشان. بارگاہ خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. ہمارے پاؤں اگر ٹکنے پہ آ جائے تو دوشی مصطفیٰ پہ آ جاتے ہیں. اب جب منبر کا وارث علم کی صورت میں جلوہ فروز ہوئے تو کائنات کے مشکل کشا نے قرآن کی طرح وہ دعویٰ کیا جو پہلے سامت نے کیا تھا. اب ناطق کی زبان سے عرب سن رہا ہے. سامت نے کیا کہا تھا, لا ناطقی ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر مجھ میں موجود نہیں ہے. اب سامت کی طرح ناطق نے دعویٰ کیا, سلونی ما شئتم, مجھ سے پوچھو جو تم چاہتے ہو. میں سوچ رہا ہوں کہ جتنا سفر میں آپ کو کروا کے یہاں تک لے آیا ہوں, اگر یہاں پہنچ کر آپ سست پڑ گئے تو شاہ نجف کی محبت میں جو سجاد سالک دل کی طاقت استعمال کر کے آپ جملے کہنے لگا ہے وہ تو فضا میں بکھر جائے گی. سلونے, اچھا پوری ذمہ داری سے یہ جملہ کہتا ہوں, کائنات کے مشکل کشا نے اس سے پہلے تقسیم کیا. اور کیا تقسیم کیا؟ میرے مولا نے کہا سلونی عن القرآن, مجھ سے پوچھو قرآن کے بارے. سلونی عن العرش, مجھ سے پوچھو زمین کے بارے. سلونی عن الاسماء, مجھ سے پوچھو اللہ کے اسماء کے بارے. سلونی عن السماء, مجھ سے پوچھو آسمانوں کے بارے. سلونی عن المشرق, مجھ سے پوچھو مشرق کے بارے. سلونی عن المغرب, مجھ سے پوچھو مغرب کے بارے. جب کائنات کا مشکل کشا تقسیم کر رہا تھا تو نیتوں کا علم رکھنے والا علی ایک مرتبہ ماتھے پہ ابھرنے والے تصور کے سوالوں کو ایک لمحے میں جھانچ کے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں یہ سمجھے کہ
अली सिर्फ इन्हें ही जानता है, अली सिर्फ कुरान ही के बारे जानता है, अली सिर्फ जमीन ही के बारे जानता है, अली सिर्फ आसमान के बारे ही जानता है, अली सिर्फ मशरिक की जानब जानता है, अली सिर्फ मगरिब की जानब ही जानता है। ये मेरे मौला ने उनकी नियतों को देखकर वो जुमला कहा जिसमें चुप रहना परेशानी है। मेरा मौला कहते हैं सलूनी माशे तुम, मुझसे पूछो जो तुम चाहते हो। जब कहा ना सलूनी माशे तुम, मुझसे पूछो जो तुम चाहते हो, तो फिर जितना जितना किसी का ज़र्फ था वैसे वैसे हुए सवाल। और आपने कई मर्तबा सुना है कि जब मेरे मौला ने ऐसे ही मिजाज का दूसरा दावा किया था ना कि ये वो हाथ हैं जो हर जान तार तक उसके नसीब का रिस्क पहुंचाते हैं। बेशक बेशक, वाह वाह। नहीं, इस जुमले पर अगर आप चुप रहेंगे तो मेरे कलेजे का खून हो जाएगा। जुमला तब्दील करके कहने लगा हूं, अली कहते हैं कि ये मैं ही जानता हूं कि आज कौन कब कहां क्या खाएगा। क्यों? ये तो वही कह सकता है ना जो बांट रहा हो। और उसे पता होता है कि उसको मैंने क्या दिया है, उसको मैंने क्या दिया है, इसे मैंने क्या दिया है। जब मेरे मौला ने कहा ना कि ये मैं ही जानता हूं कि आज कौन क्या खाएगा, तो एक बदनसीब खड़ा हुआ, उसने कहा मैं क्या खाऊंगा। कई मरतबा सुना आपने, लेकिन मैं शायद अजब की चौखट से भागता हूँ माशाल्लाह, और बात अपनी करने का आती है माशाल्लाह, इसलिए आज जो जुमला मैं कहूंगा वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। माशाल्लाह। जब मेरे मौला से उसने कहा ना कि मैं क्या खाऊंगा, अली कहते हैं तुम दूध और चावल खाओगे। वाह। और हमारे यहाँ दूध और चावल के मिलाप को खीर कहते हैं। बेशक। मेरे मौला ने कहा तुम खीर खाओगे, वाह। और वो इस बात पे अकड़ गया कि मैं खीर नहीं खाऊंगा। वाह। मैं कहता हूँ काश मैं वहां होता तो मैं उससे मशवरा देता, आज ना अकड़, क्योंकि आज ये चीज मजेदार है। भाई खीर पे कौन अकड़ता, बल्कि तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए था मेरे अली का, और हाथ बांध कर सलाम करना चाहिए था कि या अली सरकार मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आपने मेरे नसीब में आज खीर लिखकर मुझे मौलवियों में शामिल कर दिया। लेकिन इतनी बदकिस्मती और इतनी कमजोरी उसकी कि वो इस पे अकड़ गया और उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा। और उसकी सोच क्या थी कि आज मैं नहीं खाऊंगा, अली अपने दावे में गलत हो जाएगा। लेकिन वो जिस ज़र्फ का मालिक था और जो खून उसकी रगों में धड़क रहा था और जिस खानदान की तासीर वो अपने से दावे से साबित करना चाह रहा था, उसे कई मरतबा शिकस्त हो चुकी थी। अली के खिलाफ कई मरतबा प्रोपेगेंडा में वो नाकाम हुए थे। इसके बावजूद उसने फिर एक नाकाम कोशिश की। घर पहुंचा, क्या बताया है उसे सुनने को यही मिला कि तुम्हें दूध मिलेंगे, चावल मिलेंगे। मोहल्लेदारों से पूछा, आस पास वालों से पूछा, शहर से बाहर निकल गया और एक चरवाहे से उसने शिद्दत भूख में पूछा कि तू कुछ खाने के मूड में है तो क्या खाओगे। उसने कहा मैं कुछ चावल घर से लेके आया हूँ और दूध मेरी बकरियों का बहुत ज्यादा है, चावलों के साथ दूध को मैं डालूंगा, इससे बड़ी गज़ा कोई नहीं है। उसने कहा बस आज दूध ही तो चावल नहीं खा ले। उसने कहा इतनी बेकरारी क्यों है और इतना अपने आप के साथ एहतजाज क्यों कर रहा है। उसने कहा अली ने कहा था कि मैं दूध और चावल खाऊंगा, मैं आज ना खा के अली को उसके दावे में गलत करूंगा। अकीदत मंद ने फिर पूछा किसने कहा था, उसने कहा अली ने कहा था। कहते फिर मेरे करीब आ, अगर तू नहीं खाना चाहता मेरे पास और भी बड़े रास्ते हैं। जैसे वो उसके करीब हुआ उसने शहर से पकड़ा, उसे जमीन पे गिराया, उसके मुंह में चावल डाले और दूध डाल के उसने एक जुमला कहा, कायनात में दो ही हस्तियां हैं जिनका कहा नहीं बदलता,
उसने कहा इनका लिखा और इनका कहा तो कभी बदलता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद मेरे मौला की करीबी है कि मेरे मौला ने बस उसे इतना ही कहा कि तुम दूध और चावल खाओगे, काश साथ में ये भी कह देते और अगर नहीं खाओगे तो साथ में मार भी खाओगे। वही अली मिंबर पे और हर बंदे ने अपने अपने ज़र्फ के मुतालिक सबूत देते हुए सवाल किया, लेकिन एक साइल ऐसा उठा, बस अब मैं यहां से चेहरे देखना शुरू कर रहा हूं और इन चेहरों को देखता हुआ आखिरी आदमी का चेहरा जो गुलाब की तरह खिला हुआ है और गुलाब ही की तरह खिलना चाहिए। ये खतीब की खताबत का जुमला नहीं है, ये रसूल की रिसालत के अपने काम करने के हालात को साबित करते हुए मोहब्बत अली के साथ इजहार में कहा हुआ जुमला है कि अली का तज़किरा सुन के मोमिन गुलाब की तरह खिलता है और मुनाफिक मुरझा जाता है। इसलिए कहा कि गुलाब की तरह खिले हुए चेहरे उस छोटे ज़र्फ के मजमे से एक इतना खूबसूरत बंदा खड़ा हुआ, तारीख ने जिसका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम लिखा है और उसने खड़े होके एक सवाल किया है और जितना खूबसूरत उसने सवाल किया है उतना ही हसीन मेरे मौला ने जवाब दिया है। अब बोलेगा वो जिसे सवाल की समझ आएगी, जाहिर है जिसे सवाल की समझ आएगी जवाब का लुत्फ भी तो उसी को ही आएगा ना। अब उसका सवाल सुनते चले जाना कि उसने सवाल किन किन मंजिलों से गुजरते हुए किया है। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम खड़े हुए कायनात के मुश्किल कुशा को सलाम किया अपनी माँ की शराफत का इजहार करते हुए और एक जुमला कहा, या अली सरकार मेरा एक सवाल है। चकर मेरा एक सवाल है। कायनात का मुश्किल कुशा मुस्कुरा के कहता है, सवाल भी हम बताएं। या इब्ने मुस्लिम ने कहा, नहीं आले सरकार, सवाल आपसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन आज सवाल मैं अपनी जुबान से ही कहूंगा। कल को हो सकता है कि मौलाना कहते कि वो तो ये पूछना ही नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी जुबान से ही सवाल करूंगा। जब उसे कहना मैं अपनी जुबान से सवाल करूंगा, कायनात के मुश्किल कुशा ने इजाजत देते हुए कहा, इब्ने मुस्लिम पूछ। अब इब्ने मुस्लिम ने पूछना शुरू किया, कहते या अली सरकार बस इतना बता दीजिए, मर्तबे में आप अफजल हैं कि मरियम का बेटा ईसा। नहीं मेरे साथ मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पे इतनी थोड़ी वाहवा की तलब मुझे नहीं है, इसलिए कि आप जितनी वाहवा करेंगे वो सजा साले की खताबत को नहीं करेंगे, अपने मौला की विलायत को करेंगे। मर्तबे में आप अफसल हैं कि मरियम का बेटा ईसा। सवाल उसका शुरू हो रहा है, खत्म नहीं हुआ यहाँ पर। मर्तबे में आप अफसल हैं कि मरियम का बेटा ईसा, जबकि कुरान कहता है ईसा बहुत मोजज़नामा थे। चकाना कुरान कहता है कि ईसा बहुत मोजज़नामा थे। मेरा अपना अकीदा है, अगर अली के अलावा उस मिंबर पे कोई और बैठा होता ना तो तारीख एक मर्तबा फिर सुनती, अगर आज अली न होते मैं फिर हलाक हो गया होता। लेकिन सवाल करने वाले को समझ थी कि मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो हकीकतन नातिक़ कुरान है, किरदार इसी किरदार पे तो अल्लाह ने कुरान उतारना शुरू किया है। किरदार पे मुर्तज़ा के अगर दिबाचे को देखा जाए तो कुरान ही की तो आयतें बनती है। और एक मर्तबा कुरान से पूछते चले जाते हैं, अली ने कभी कुरान की आयत के आने से बाद में अमल नहीं किया, बल्कि जो अली करते थे वही कुरान बन जाता था। शब हिजरत अली पहले सोए थे, आयत बाद में उतरी थी। हालत रुकू में ज़कात में अंगूठी अली ने पहले दी थी। इन्ना वलियो
अल्लाह की आयत बाद में आई थी। सलोनी का दावा अली ने पहले किया था। फसल वाले जिक्र इन कुंतुम ला तालमून की आयत बाद में आई थी और मिटाने की दाल में अली पहले करे थे। बजाए तो फी सबीलिल्लाह कानो बुनियादन मखसूसा की आयत बाद में आई थी। ये कायनात का मुश्किल कुछ है कि जिसके किरदार पे अल्लाह कुरान बराबर के उतार रहा है, उसी को वो कह रहा था कि कुरान कहता है ईसा बहुत मोजज़्ज़त है। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा, इब्न मुस्लिम ईसा का पहला मोजज़्ज़ा, जब ना पहला मोजज़्ज़ा। अब उसका पहला मोजज़्ज़ा सुन लेना और अंदाजा लगा लेना कि जिसके पहले मोजज़्ज़े की इब्तिदा यहां से हो रही है। पहला मोजज़्ज़ा कहते या अली सरकार, जनाबे ईसा का पहला मोजज़्ज़ा ये है कि वो मुर्दे जिंदा कर लेते थे। अच्छा, दूसरा मोजज़्ज़ा कहते या अली सरकार, जनाबे ईसा का दूसरा मोजज़्ज़ा ये है कि ज़माने के तबीब, ज़माने के डॉक्टर, ज़माने के हकीम जिस बीमारी को नहीं समझ पाते थे और वो उस बीमार को लाइलाज करा देते थे, तो लाइलाज बीमारी वाले मरीज भी जनाबे ईसा की चौखट पे आते थे तो शफा याब होके जाते थे। अली मुस्कुरा के कहते हैं तीसरा मोजज़्ज़ा बयान कर। जब कहा तीसरा मोजज़्ज़ा बयान कर, कहते हैं या अली सरकार, जनाबे ईसा का तीसरा मोजज़्ज़ा बड़ा मोजज़्ज़ा है। जब कहा तीसरा मोजज़्ज़ा बड़ा मोजज़्ज़ा है, मेरे अली कहता है सबसे बड़ा इस्तेमाल न कर, मोजज़्ज़ा बयान कर। जब कहा लफ्ज़ से बड़ा इस्तेमाल न कर, सिर्फ मोजज़्ज़ा बयान कर। अब उसने तीसरा मोजज़्ज़ा बयान करना शुरू किया। या अली सरकार, जनाबे ईसा का तीसरा मोजज़्ज़ा ये है कि मरियम का बेटा ईसा अपने हाथों में मिट्टी को उठाता था, उस मिट्टी से खेलना शुरू करता था और लोग जनाबे ईसा के करीब इकट्ठे हो जाना शुरू हो जाते थे। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को देखते जाते थे और मिट्टी से खेलते जाते थे और देखते ही देखते जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम के जब इर्द गिर्द हजूम इतना ज्यादा हो जाता था कि जनाबे ईसा दरमियान में आ जाते थे और जिधर देखते थे लोग ही लोग होते थे। तब जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम अपने हाथों में उस मिट्टी से किसी भी परिंदे की शक्ल पे एक खिलौना बनाते थे। जमाना देख रहा होता था और जब जनाबे ईसा उस मिट्टी से परिंदे की शक्ल पे खिलौने को बना लेते थे, फिर उसी खिलौने को अपने हाथों पे बुलंद करते थे और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद करते हुए अपने लोगों के करीब लाते थे। लोगों के करीब लाने के बाद उसी परिंदे की शक्ल वाले खिलौने को जिसे खुद बनाया होता था उसे हवा देते थे, उसे फूंक मारते थे। वो खिलौना हकीकी परिंदा बन के हवाओं में उठाया करता था। बस ये मोजज़्ज़ा देखने के बाद तेरी जात से पूछना जरूरी हो गया है कि मर्तबे में तू अफसर है कि मरियम का बेटा ईसा अफसर है। अली मुस्कुरा के कहते हैं फैसला खुद कर लेना। जब मरियम के बेटे ईसा के हाथ में मिट्टी आई थी तो फिर उस मिट्टी से वो परिंदों की शक्ल पे खिलौने बना के उनमें जान डालता था। फैसला कर लेना, वो परिंदों की शक्ल पे खिलौने बनाता था और जब मेरे हाथ में मिट्टी आई थी तो परिंदों की शक्ल पे कोई खिलौना नहीं बना था, आदम का वजूद बना। आदम का वजूद बना था। जब मेरे हाथ में मिट्टी आई तो फिर आदम का वजूद बना। अब पूछो है कि कुरान में आयत जो अली के इस दावे की दलील बने? मैं कहता हूं मैं उसे अली मानता ही नहीं हूं जिसके किरदार पे भी आयत न उतरे, जिसके अफकार पे भी आयत न उतरे, जिसके फेल पे कुरान न बने, जिसके कौल पे आयतें न उतरे। मेरे मौला ने कहा मेरे हाथों में मिट्टी आई, आदम का वजूद बना। थी मैंने आवाज कुरान को, तेरे वारिस ने कहा है कि मेरे हाथ में मिट्टी आई तो आदम का वजूद बना। है कोई तेरे दामन में
दावे अली के दलील कुरान ने मुस्कुरा के कहा मुझे पढ़ना शुरू कर। पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरत 7 पे पहुंचा मुझे कुरान की आयतों ने वो नक्शा दिखाया कि जब मेरा अल्लाह इब्लीस पे लानत डाल रहा था कि तू उसे सिजदा नहीं कर रहा, खलक़्तु बियदी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, खलक़्तु बियदी जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब रखो मौलवियों के सरों पे कुरान और सिर्फ इतना पूछो अल्लाह की तारीफ क्या है, तो छोटे मौलवी से लेके बड़े मौलवी तक सबका एक ही जवाब है, अल्लाह की तारीफ ये है कि वो हर जगह मौजूद है लेकिन वजूद नहीं रखता। भाई ये कैसी मंतिक है कि मौजूद है वजूद नहीं रखता। तो मौलवियों ने मुत्तफिका होके कहा है अगर वो वजूद रखे तो महदूद नहीं रहेगा, फिर वो महदूद हो जाता है, ला महदूद नहीं रहता, एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। अगर वो हाथ बनाए फिर उसे बाजुओं की जरूरत है, बाजू बनाई कंधे की जरूरत है, कंधा बनाई गर्दन की जरूरत है, सीधे की जरूरत है, कमर की जरूरत है, टांगों की जरूरत है। इसलिए अल्लाह जिस्म से बाबरा है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है। मैंने कहा मेरा मसला हल हो गया, ये बात तय हो गई है कि अल्लाह हाथ नहीं रखता। अगर अल्लाह हाथ नहीं रखता तो कुरान में किसके हाथों का जिक्र? जो ये मालिक कह रहा है कि इसे मैंने अपने हाथों से बनाया और ऐ कारी कुरान, ऐ हाफिज़ कुरान, तेरी सबसे बड़ी मुनाफिकत ये है कि तूने कुरान को हकीकत में पढ़ा ही नहीं है, तुझे तन्हा अल्लाह के हाथ नजर नहीं आ रहे। आज तुझे मैं और आयतें पढ़ के दिखाऊं, कुरान में तन्हा अल्लाह के हाथों का जिक्र नहीं है। फिर मेरे मालिक ने सूरह अनकबूत में नूह को आवाज देते हुए कहा या नूह वस्नल फुल्क बिआयुनिना, कश्ती बना मेरी आंखों के सामने। कुरान ने बताया अल्लाह की आंखें हैं, कुरान ने बताया अल्लाह का चेहरा है, और फिर अल्लाह ने एक ऐसी आयत को उतारा, बड़ा करीब लेके आ गया हूं, मैं नतीजा देने लगा हूं। फिर मालिक ने एक ऐसी आयत को उतारा कि इस आयत को उतारने से पहले कई मर्तबा तकरार किया है, तुम मेरी किस किस नेमत का इनकार करोगे, तुम मेरी कौन कौन सी नेमत झुठलाओगे। मालिक तूने कभी तकरार नहीं किया, लेकिन एक नेमत उतारता है और बाद में तू खुद पूछता है तुम मेरी कौन कौन सी नेमत इनकार में लाओगे, किस किस नेमत को झुठलाओगे। मालिक कौन सा ऐसा जिक्र है जो इस सूरत में तू करना चाह रहा है। मालिक कहता है मेरा कुरान पढ़ना शुरू कर, नतीजा तेरे सामने आ जाएगा। कुरान पढ़ते हुए सूरह रहमान की जब इस आयत में मेरी आंखें गई, मालिक ने ऐलान किया वकुल्लु मन अलैहा फान व यबका रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, हर चीज फना हो जाएगी लेकिन अल्लाह का चेहरा बाकी रहेगा। कुरान ने बताया अल्लाह का चेहरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब कुरान ने 3 चीजों की वजाहत की, अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की आंखें हैं, अल्लाह का चेहरा है। अब जिसने जिंदगी भर के लिए लोग लेना है वो थोड़ा सा मेरे साथ मिजाज मिला है। अगर बूढ़ों की जवानी ना पलटे तो शायद नजफ की आदाब में मुझे रश्क का कोई इख्तियार नहीं। कुरान ने बताया अल्लाह के हाथ, कुरान ने बताया अल्लाह की आंखें, कुरान ने बताया अल्लाह का चेहरा। और जिस कुरान ने अल्लाह के हाथ, आंखें और चेहरा बताया है ना, उसी अल्लाह के कुरान ने अल्लाह का कानून समझाया है कि वो अला कुल्ल शैइन कदीर, जो बनाता है दिखाता है।
یہ قانون رب کائنات ہے کہ وہ جو بناتا ہے دکھاتا ہے. اللہ نے چاند بنایا سب کو دکھایا, سورج بنایا سب کو دکھایا, ستارے بنائے سب کو دکھائے, سیارے بنائے سب کو دکھائے, شجر بنائے سب کو دکھائے, حجر بنائے سب دکھائے. اللہ نے بار بنایا سب کو دکھایا, اللہ نے باہر بنایا سب کو دکھایا, اللہ نے ہوائیں چلائی سب کو دکھائی, اللہ نے کٹائیں بنائی سب کو دکھائی, اللہ نے موجیں بنائی سب کو دکھائی, اللہ نے روانیاں بنائی سب کو دکھائی, اللہ نے طغیانیاں بنائی سب کو دکھائی, اللہ نے دریا بنائے سب کو دکھائے, اللہ نے سمندر بنائے سب کو دکھائے, اللہ نے زمین کا فرش بنایا سب کو دکھایا, بغیر چھت کے آسمان کا سایہ کیا سب کو دکھایا, اللہ نے دن بنایا سب کو دکھایا, اللہ نے رات بنائی سب کو دکھائی. رب کائنات نے انسان بنائے, انسانوں کو انسان دکھا کے رب کائنات نے اپنا قانون بنایا کہ میں جو بناتا ہوں دکھاتا ہوں. انسانوں کے لیے زندگی کو بنایا, زندگی دے کے دکھایا, انسانوں کے لیے موت کو بنایا, موت دے کے دکھایا. اللہ نے انسانوں کے لیے ہادی بنائے, قدم قدم پہ ہادی بیچ بیچ کے اپنے قانون کے مطابق ہادی دکھائے. یہ رب کائنات کا قانون ہے کہ وہ جو بناتا ہے دکھاتا ہے. شب معراج رب کائنات نے اپنے نبی کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ تجھے جنت پھر دکھاتا ہو, جہنم پھر دکھاتا ہو, کیونکہ دنیا تجھے صادق مانتی ہے, تجھے امین مانتی ہے. جب تو کہے گا کہ میں جنت دیکھ کے آیا ہوں, جہنم دیکھ کے آیا ہوں, میرا قانون مکمل ہو جائے گا کہ میں جو بناتا ہوں وہ دکھاتا ضرور ہوں. کائنات کے نبی نے کہا کہ میں نے جنت کو دیکھا, میں نے جہنم کو دیکھا, یہ رب کائنات کا قانون ہے. میں نے کہا مالک یہ ہے تیرا قانون کہ تو جو بناتا ہے قانون کے مطابق وہ دکھاتا ہے. یہ تیرا قانون ہے کہ تو جو بناتا ہے وہ دکھاتا ہے. تو قرآن میں تو نے اپنے ہاتھ بنائے, قرآن میں تو نے اپنی آنکھوں کا تذکرہ کیا, قرآن میں تو نے اپنے چہرے کی بات کی. اب قانون کے مطابق تجھے ہاتھ بھی دکھانے ہیں, تجھے چہرہ بھی دکھانا ہے, تجھے آنکھیں بھی دکھانی ہے. تو مالک نے چوم کے کہا دکھاؤں گا ضرور, لیکن کسی آسمان سے نہیں, تیرا رجب کو اپنے مکان سے. تیرا رجب اپنے مکان سے اپنی آنکھیں دکھاؤں گا, اپنے ہاتھ دکھاؤں گا اور اپنا چہرہ دکھاؤں گا. اور 16 رجب کو جب نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول عرب کی گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن, جب کعبے کی چار دیواری کے اندر سے اپنے ہاتھوں کے ناطق قرآن کو اٹھا کے باہر نکلے اور صحن سرکار عمران میں داخل ہوئے, تو ہاشمیوں کے جتنے بھی قریب کے رشتہ دار تھے وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے. یہ تجزیہ شروع ہو گیا. اس کے ہاتھ بڑے بھائی کی طرح ہے, اس کا جلال اپنے باپ کی طرح ہے, اس کی آنکھیں ماں پہ جا رہی ہیں. جلال میں جلی آیا, صفے ملائکہ سے جبریل کو نکالا. جبریل جا کے میرے محمد سے کہتے علی کے خد و خال پر کوئی بات نہ کرے. جب کہا علی کے خد و خال پہ کوئی بات نہ کرے, یہ ہم بتائیں گے کہ علی کس پہ جا رہا ہے. جب کہا یہ ہم بتائیں گے علی کس پہ جا رہا ہے. حبیب تجھے تیرا خدا کہتا ہے, علی کی آنکھیں عین اللہ ہے, علی کی زبان لسان اللہ ہے, علی کے ہاتھ ید اللہ ہے, علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, علی کے کان رسول اللہ ہے, علی کا پورا وجود رسول اللہ ہے. جو کبھی نہیں بھولے کا جملہ, وہ جملہ کہنے لگا 50 سالے جب جبریل نے پیغمبر کو پیغام رب کائنات دینا شروع کیا کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہے, علی کی زبان لسان اللہ ہے, علی کے کان رسول اللہ ہے, علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے, علی کے ہاتھ ید اللہ ہے, علی کا وجود رسول اللہ ہے. میرا نبی تعجب میں فرش پہ کھڑا ہو گئے, عرش کی طرف دیکھ کے ایک ہی جملہ کہتا ہے سلطان نصیرہ کی دعا میں نے مانگی, اور عجیب بات ہے تو مجھے علی دے بھی رہا ہے لے بھی رہا ہے. علی دے بھی رہا ہے اور دے کے علی لے بھی رہا ہے. اچھا اگر تو لا الہ الا اللہ ہے
तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तूने कहा है अली की आंखें तेरी आंखें, तूने कहा है अली की ज़बान तेरी ज़बान, तूने कहा है अली का चेहरा तेरा चेहरा, तूने कहा है अली के हाथ तेरे हाथ, तूने कहा है अली के कान तेरे कान। अब जो बच गया है वो मैं कहने लगा हूँ, अली का दिल मेरा दिल, अली की रूह मेरी रूह, अली की रूह मेरी रूह, अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त। अब मैं कहाँ जाऊँ दोस्तों? इमरान का शहजादा आते ही दो बड़ी हस्तियों में तकसीम हो गया। आधा ला इलाहा इल्लल्लाह ने ले लिया, ज़बान के साथ दिल बोला, आते ही तकसीम, आधा ला इलाहा इल्लल्लाह ने ले लिया, आधा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ले लिया। अभी भी पूछते हो कलमे में कहाँ है अली? और जब अली दो बड़ी हस्तियों में तकसीम हो गए, मैंने शाहिद रजब को तसव्वुर में पूछा, या अली आप नासर अंबिया है, मुश्किल कुशा है, हाजिर दरवा है, बाबे मदीनतुल इल्म है, तेरी चौखट से कभी कोई फकीर साइल खाली नहीं गया। इस मंतक की समझ नहीं आई कि तू आते ही दो बड़ी हस्तियों में तकसीम हो गया, आधा अल्लाह ने ले लिया, आधा रसूल ने। तो मेरे अली ने तसव्वुर में जवाब देते हुए कहा, आदम से पहले अल्लाह मोहम्मद में ये वादा हो गया था कि जमीन पे जाते ही आधा अली तू ले लेना, आधा अली मैं ले लूंगा, ताकि तेरे बाद जो भी अली से लड़ेगा या जो भी अली से लड़ेगी उसकी लड़ाई अली से नहीं है, आधी अल्लाह से और आधी रसूल से। कितना करीम है अली, लेकिन इस करीम अली को 10 मुहर्रम डरती हुई शाम गरीबा, जलते हुए खैमों के बाद, तपती हुई रेत पे बैठी हुसैन की सकीना ने एक जुमला कहा था, दादा आज तेरे इस लम्हे आने से पता चल गया है कि अमीर की बेटी कौन है। अजर को मिलता है। और गरीब की बेटी कौन है? और सानों पे बैठाकर बेरली ने कहा, सकीना ये अपने आप को गरीब की बेटी क्यों कहती है? अब सुनोगे जो 4 बरस की शहजादी ने अपने दादा अली को जवाब दिया है, अगर सीने में ताकत है तो सुन के बर्दाश्त कर लेना। अली कहते हैं, खुद को गरीब की बेटी क्यों कहती है? शहजादी दुखे कानों से जले हुए कुर्ते के दामन के साथ दादा की चोली छोड़ के 9 कदमों के फासले पे जाके कहती है, इससे बड़ी भी कोई दलील है कि तेरी बेटी ने एक आवाज दी, तू नजफ छोड़ के आ गया और मैं असर के सिजदे के वक्त आवाजें देती रही, दादा अली मेरा बाबा सिबा, और मेरी आवाज पे दादा तू नजफ छोड़ के नहीं आया। होगी 11 मुहर्रम, पहले हाथों में रस्सियां और चल पड़ी हुसैन की सकीना शाम की कैदन होकर। मैंने कह दिया आपका हौसला है कि आप बर्दाश्त करें, जो बेतहाशा होना चाहे। एक जुमला कहूं, अक्सर हुसैन रात की तन्हाई में 2 चेहरे जाके देखा करते थे। एक अली अकबर का चेहरा और कभी कभी हुसैन सोए अकबर का सीना चूमा करते थे। और दूसरा
اپنی چھوٹی سی سکینہ، اور اکثر حسین اپنی سکینہ کی کلائیاں چوما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی کہتی بابا آپ میرے ہاتھوں کو اتنا کیوں چومتے ہیں؟ حسین کہتے ہیں کاش ان ہاتھوں میں رسیاں نہ پڑیں۔ اجر کم لگا ہے، خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو آج حسین کی سکینہ کے غم میں بے تحاشا رو سکے۔ اور میری دعا ہے جن مرحومین کی بلندی درجات کے لیے دعا کی تھی نا، مالک روتی آنکھوں سے پھر تیری بارگاہ میں اس طرح سا ہے کہ ان کی روحوں کو اتنی تسکین دے دے کہ حسین کی سکینہ ان کی شفاعت کا سبب بن جائے۔ 11 محرم ہاتھوں میں رسیاں اور چل پڑا ہے آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ جو بے تحاشا ہونا چاہے۔ چلتے چلتے ایک منزل پہ حسین کا نیزہ رک گیا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ جملہ میں کیسے کہوں گا اور آپ کیسے برداشت کریں گے۔ پردے میں بیٹھی میری ماں بہنیں، سمجھ میں آ گیا تو یہ کہہ کے آواز دے کے رونا رباب تیری سکینہ کے اجڑ جانے کا بڑا ارمان ہے۔ جب حسین مولا کا عزادارو نیزہ رک گیا نا تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا میرے مولا کا اس نے بڑی کوشش کی لیکن وہ نیزہ حرکت میں نہیں آتا تھا، نہ دائیں ہوتا تھا نہ بائیں ہوتا تھا نہ آگے ہوتا تھا۔ اس نے آواز کی شمر، حسین کا نیزہ آگے نہیں بڑھتا۔ اور جب اس نے دیکھا نا عزادارو، مجھے معاف کر دینا اگر اس جملے کی سمجھ آ گئی اور پھر آپ بے تحاشا رو پڑے تو اتنے سخت جملے پر مجھے اس لیے معاف کر دینا کہ مجھے میرے چھٹے مولا کا فرمان یاد ہے کہ ہماری مصیبتوں پہ پردہ نہ ڈالو۔ جیسے شمر قریب ہوا اس نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رخ تو سامنے تھا، یہ پیچھے کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کیا تم نے حسین کے نیزے کا رخ بدلا؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں بدلا۔ کہتے پھر حسین پیچھے کیا دیکھ رہا؟ حسین کا چہرہ تو آگے ہونا چاہیے تھا اور یہ حرکت پہ نہیں کر رہا۔ کبیلہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو، مجھے یہ نیزہ چلانے کا حال آتا ہے۔ عزادار اس نے تازیانے کو ہوا میں حرکت دی اور میرے چوتھے امام کے قریب آیا جو حالت رکوع میں تھا۔ جب وہ پشت پہ لکھنا شروع کیا میرے مولا نے آواز دے کے کہا کبیرہ مجھے تازیانے مارنے کی وجہ کہتا تیرے بابا کا نیزہ چلتا نہیں ہے۔ یہ بڑی مشکل سے میرے مولا نے اپنے سر کو گھما کے بابا کی طرف دیکھا، بابا تیرے رک جانے کا سبب یہ آواز ہے اس سے جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں ایک قدم آگے نہیں بڑھوں گا۔ میری شہزادی پیچھے رہ گئی ہے، میری شہزادی قافلے سے الگ ہو گئی ہے۔ عزادارو جب میرے مولا نے کہا میری شہزادی پیچھے رہ گئی ہے تو 2 بیویاں جو علی کی شہزادی ہیں، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم، دونوں بہنیں پیچھے آئی۔ اب دونوں بہنوں نے ایک عجیب منظر دیکھا اور وہ منظر کیا تھا عزادارو؟ کوئی بی بی ہے جس نے حسین کی سکینہ کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، دائیں کی زلفیں دائیں کر رہی ہے، بائیں کی بائیں کر رہی ہے، نیلے رخساروں کے بوسے دے رہی ہے، دکھے کھانوں کو چوم رہی ہے، رسیوں والے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہے۔ یہ دونوں بہنوں نے دیکھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، آواز دے کے کہتی ہے رسول کی بیٹیاں تجھے سلام کہتی ہے، کربلا کے اس صحرا میں تو پہلی بی بی ہے جو ہم غریبوں کی اس مصیبت زدہ شہزادی کو چکانا پہلی بی بی ہے
शहजादी ज़ैनब कहती है मैं तेरी जन्नत की ज़ामन, मैं अपनी माँ से तेरी सिफारिश करूंगी। जब मैं अपनी माँ से एक मरतबा आवाज सही ज़ैनब मुझे पहचान, मैं तेरी वही माँ हूँ जिसने 28 रजब तेरे साथ मदीना छोड़ा और 8 ज़िलहज को तेरे साथ मक्का छोड़ा। तू खैमे के दरवाजे पे थी, मैं हुसैन के करीब थी। तू 72 कदमों के फासले पे थी, मैं 7 कदमों के फासले पे अपने हुसैन को 13 ज़रबों से बस चल पड़ा। काफिला बड़ी दिक्कत थी अपने अज़ादारों को। अब किसी में हौसला नहीं है कि शहजादी सकीना की मुसीबतों को मसलसल सुन ले। अब ताबूत की ज़ियारत करते हुए एक जुमला जरूर कह देना, शहजादी काश हम करबला में होते, न तेरा असगर ज़िबा होता, न तेरे कान ज़ख्मी होते। चल पड़ा काफिला। अब जो बेतहाशा होना चाहे चलते हुए अज़ादारों ये काफिला हलब शहर में पहुंचा। और जब हलब शहर में पहुंचा तो एक खुली जगह पर कबीलों ने कुछ देर सुकून करने के लिए अपने आप को रोका और जितने भी कबीले थे वो अपने जानवरों समेत छाव में चले गए और आले मोहम्मद के लुटे हुए असीर सबके सब धूप में बैठ गए। और जब सबके सब छाव में चले गए उस ठंडक से उन सबको नींद आ गई और वो सो गए। या इतने में शहजादी सकीना की निगाह उठी और देखा कि कमीनों ने हुसैन का सर एक पत्थर पे रखा हुआ और एक सिपाही की ड्यूटी लगी हुई है कि वो पत्थर के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब मुझे माफ कर देना, जब बीबी ने जुमला कहा है समझ में आ गया तो रोना ऐसे जैसे पर्दे वाला इमाम ज़ियारतों में आवाजें दे दे के कहता है, मेरा सलाम उस शहजादी पर जिसके रुखसार तमाचों के काबल में थे। उस शहजादी ने अज़ादारों अपनी फूफी को कहा, फूफी तू अली की बेटी है, तू सहरा की शहजादी है। एक